Hello everyone. Last time we discussed how we dispose various effluents we obtain from treatment units, okay, in which we studied about disposal by dilution, okay, in which we disposed our sewage in rivers, lakes and seas, okay, and next one is disposal on land, where we can use this sewage as irrigation, okay, for crop yield extra. Now today we are going to start a new topic which is solid waste management. So, what is this solid waste management? From the name, it is clear that the solid waste which is produced from the various municipalities or you can say industries, okay, how can we properly manage this waste? Okay, so we start with this. First of all, is introduction. Now, what is this solid waste? Solid waste are total waste arising from human and animal activities that are normally solid and hence are useless or unwanted. Okay, generally from where we obtain the humans and animal activities, okay. Humans includes municipalities waste and industrial waste, okay. So another term which we can represent this with is refuse. So okay, so refuse is often used interchangeably with term solid waste. So this is the introduction. Now move on to types of solid waste. There are three types of solid waste generally, which is municipal waste, industrial waste and hazardous waste. Okay, first of all, we study one by one all of them. First of all is municipal waste. What are these municipal waste? Okay, now you see that the solid waste which are producing from different zones are different in characteristics. Okay, so these waste generally include garbage and rubbish and trash, etc. Okay, so generally we use the term refuse is non-hazardous in nature. Okay, because why? Because it generally contains decomposable or food waste, vegetables, meat scraps, etc. Okay, so that's why refuse is the term that is used for non-hazardous solids. Now see here, now see, generally this their solid waste comprises refuse is garbage and rubbish. Garbage includes waste, vegetables, okay, and rubbish includes what, which is non-decomposable, and these are glass, rubber, cans, okay, or you can say combustible materials like paper, textile, wooden articles, etc. These are rubbish material, okay. सो दैट्स वाई जो वो कम्युनिटी से जो हमारा पास रिफ्यूज़ प्रोड्यूस होता है हम उसको हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम्स टू इंडस्ट्रियल वेस्ट. सी हियर आई एम शोन यू what are these municipal waste you have generally seen in your areas. Okay, small bins are there which in which you dispose your waste there. Okay, these are some examples of municipal waste. Now next comes to industrial waste. Industrial waste, from the name it is clear that industrial waste are those which are generated from industries or manufacturing process. Okay, so all three these wastes are that is industrial waste may be in solid state, in liquid state or gaseous state. Okay, so what are the main you can say industries which are responsible for this industrial waste are the industries like paper and pulp, metallurgical industries, pesticide or insecticide industries, fertilizers, plastic refineries, all these come under industrial. The wastage produced from these industries is industrial waste. Okay, so in the waste which are producing from industrial waste maybe hazards or not non-hazardous. Okay, because some industries may produce uh, uh, chemicals, you can say nutrients which may be helpful for irrigation, and some may contain toxic chemicals which may be harmful for human health. Okay, so both types of waste can be produced during this industrial waste. Now some are examples here shown here is from industrial waste. See here, these are the various waste which are produced from the industries. Okay, now see next term is hazards waste. What are these? First of all, we will see what is hazardous substance, or you can say harmful substance. So, harmful substance can be defined as anything which, because of its quantity, concentration, or characteristics, may contribute to increase mortality, illness, or
or harmful to human health. Okay, those substances are called as hazardous substance. Now, this is what is this hazardous waste? So, it is the waste is one which possesses any of the four characteristics such as corrosivity, reactivity, toxicity, and ignitability. Okay, so if any of this parameter is present in your waste, then it is harmful for our environment, or you can say hazardous for our environment. So generally the waste produced, uh, this type of waste is generally in liquid form, but sometimes sludges or in gaseous states is also present. Okay, some of the common industries which are generally responsible for these types of hazardous waste means which produces toxic materials in our environment, or you can see fertilizer industries, okay, cement industries, petroleum industries, chemical industries, because they produces large amount of toxic materials which they are disposed in rivers, okay, on lands, which may be harmful for human health as well as any living organisms there. Okay, so this is the classification of the various types of waste. Now we classify refuse. Okay, it can be classified into two categories. First of all, based on type of waste, and second is based on the source. Now, what is this garbage? So garbage is generally, what is it? Organic waste, okay, which can be decomposed like vegetables, food articles, okay, fruit peelings, etc. So if we decompose them, they, or you can say if you dump them in the bin, they decompose quickly and producing foul smells and health hazards. But it may also results in mosquitoes, or you can say fly breedings. Okay, so if we this garbage, if we properly scientifically compose them, okay, we can obtain different valuable products from it. Like if we compose this garbage, we can obtain what is called as fertilizers, you can manure, okay, we can obtain this which may be helpful for our fields. Okay, so generally the density of the this garbage generally varies from 450 to 900 kg per meter cube. Okay, 450 to 900 kg per meter cube. Next come to ashes. What are these ashes? Ashes are the incombustible waste products from furnaces. Okay, from furnaces you generally see when we burn something, there are a lot of, it results in ashes. Okay, so from there we obtain this ash, and its density generally varies from 700 to 850 kg per meter cube. Okay, next come to rubbish. Okay, now we see that the garbage is those products which are decomposed, which we can decompose easily, or which is naturally decomposing easily. But rubbish are those substances, as I already told you in the starting, that the rubbish like glass, okay, broken pieces of glass, furniture, cardboards, etc., which are non decomposable. Okay, these are called rubbish. The density of this rubbish generally varies from 50 to 400 kg per meter cube. Okay, and next classification is based on source. So from the name here, it is you can clear that house refuse which are producing from houses, and street refuse which is obtained, which you obtain from streets. Okay, and third is trade means industries, etc. Okay, industries are manufacturing process. So this is the brief classification of refuse. Now next moves to methods of collection, how we can collect this waste, solid waste which are producing from commercial or industrial waste. Okay, so so next comes to method of solid waste collection. So in India, you generally see that the how you can collect solid waste management in generally is collected by sweepers in small hand driven lorries or carts. Okay, you have seen, many of you seen them. Okay, and then they dump into the community store bins which are uh, placed at regular intervals, means 50 to 200 मीटर इंटरवल्स पे हम इसके लगाया होता है, बिन्स लगाए होते हैं जहाँ पे ये स्वीपर जो होते हैं, जो भी इन्होंने डिस्पोजल हाउसेज से कलेक्ट किया होता है, वेस्ट कलेक्ट किया होता है, वो उनको बिन्स में डिस्पोज कर देते हैं। और ये 50 टू 200 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं जनरली। ये डिपेंड करता है कि एरिया में पॉपुलेशन किस हिसाब से और वेस्ट जनरेशन किस हिसाब से है, उस हिसाब से ये इसकी डिस्टेंस होता है वहाँ पे। ओके, सेकेंडली इनकी कैपेसिटी कितनी होती है इंडिया में? ये होती है
100 से 500 लीटर्स पर होती है, और ये डिपेंड करता है कि जोन वाइज वेस्ट जनरेशन कितना हो रहा है, ठीक है। थर्ड थर्ड वन इज, now the waste which is collected from here, okay, from houses it is collected in bins, and from bins it is transported to the point of final disposal or treatment with the help of some transport vehicle, okay. Great. Now next comes to points to be taken care of during solid waste collection, okay. What points should be we kept in mind during collection of solid waste management, ओके। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगी स्प्रेडिंग और स्कैटरिंग ऑफ रिफ्यूज़। तो जब भी हमें वेस्ट कलेक्ट करेगा स्वीपर वहाँ पे, तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गिरे नहीं रास्ते में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटो ब्रीडिंग या फ्लाई न्यूसेंस वगैरह क्रिएट हो सकता है, और फॉल स्मेल्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास आ जाता है क्लीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, फाइनल डिस्पोजल के लिए, जो भी हम बिन से कलेक्ट करते हैं वेस्ट, उसको डिस्पोज करने के लिए वो जो व्हीकल लेके जा रहा है उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, रेगुलरली इंटरवल पे उसकी क्लीनिंग होती रहनी चाहिए। थर्ड, जो हमारे पास बिन्स होते हैं और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है उसके ऊपर कवर होना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या होगा, उसकी वजह से जो ये रोडेंट्स चूहे वगैरह हों वहाँ पे सर्वाइव ना कर सकें। नहीं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे चूहे या अदर इंसेक्ट्स जो होते हैं अनप्लेजेंट होते हैं, वो वहाँ पे सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो होती है लोडिंग टाइम जो होती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल की, वो लो होनी चाहिए। लो होनी चाहिए मतलब वो 1.5 मीटर, ताकि हमारे पास जो फिल करने के लिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल को जो वेस्ट से फिल करने के लिए एफर्ट कम लगाना पड़े, ओके। थर्ड जो होता है, उसके बाद मैकेनिकल डिवाइसेस कुछ इंस्टॉल करनी चाहिए व्हीकल्स में, ताकि उस हम ईजिली जो वहाँ पे हमने कलेक्ट किया हुआ है उसको ईजिली खाली कर सके वहाँ से। इसलिए हमें कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस इंस्टॉल करनी चाहिए। और लास्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम ऑप्टिमम कलेक्शन रूट, ओके। तो हमें कुछ ऐसा रूट सिलेक्ट करना है जिसमें हम मैक्सिमम एरिया कवर कर पाएँ, और एक अपने एक डिस्पोजल में जितना मैक्सिमम हो सकता है वेस्ट उसको डिस्पोजल पॉइंट तक ले सकें, ओके। So these are the various points which we have to kept in mind during solid waste management, okay. This now we see how we collect the waste, okay. First of all, we see the sources from where it is generated. Second off, we see how we can collect them, and in third we see how we dispose this solid waste, okay. The next one is disposal of solid waste. So in disposal of solid waste, there are different methods you can adopt, okay. So what are these methods? These methods are open dumping, sanitary landfill, composting, pulverization, incineration, and pyrolysis. So we will discuss one by one all of them. First is open dumping. अब ओपन डंपिंग से आपको क्या पता लग रहा है कि जो भी हम यहाँ से वेस्ट डिस्पोजल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी वेस्ट हम कलेक्ट करेंगे बिन से, उसको हम कहाँ करेंगे, उसको हम कहाँ करेंगे, बिल्कुल ओपन एरिया, जहाँ भी ओपन एरिया लो लाइंग एरिया होगा वहाँ पे उसको डाल देंगे, ठीक है। तो फर्स्टली ये तो इको फ्रेंडली मेथड नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, लॉट ऑफ न्यूसेंस स्मेल प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या बीमारियाँ पैदा होने के चांसेस रह जाते हैं, वैसे मॉस्किटोज और फ्लाइज की ब्रीडिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली ये प्रैक्टिस कहाँ हम अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे सेमी अर्बन या रूरल एरियाज हों, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हम इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं ओपन डंपिंग में, ठीक है। और सेकंड आ जाता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूल मेथड। ये एग्जांपल है हमारे पास ओपन डंपिंग की, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है हम ओपनली डंप कर रहे हैं इसको कहीं भी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओपन डंपिंग मेथड आ जाता है, पर जनरली हम इस मेथड को अब अडॉप्ट नहीं करते हैं, पहले करते थे पर अब नहीं करते हैं, इसलिए ओल्ड मेथड है। अभी भी कुछ एरियाज में होता है, पर जनरली ये विलेजेस वगैरह में होता है। नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफिल मेथड। अब सेंट्रीफिल मेथड में क्या होगा कि जो हमारे पास लो लाइंग एरियाज होते हैं, ठीक है, तो उन लो लाइंग एरियाज को हम क्या करते हैं, फिल कर देते हैं किससे, जो भी हमारे पास वेस्ट वगैरह प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो भी हमारा वेस्ट जो डिस्पोज करना होता है हमने फाइनल डिस्पोजल के लिए, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है। ताकि जो हमारे पास डिप्रेशन होंगी, नेचुरली जो भी डिप्रेशन होगी वहाँ पे वो फिल हो जाए, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, फिलिंग करने के लिए अलग अलग इसको एंटायर एरिया को अलग अलग स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उन पोर्शंस में एक एक टाइम पे हम उस पर डंप करते रहते हैं अपना वेस्ट। तो जैसे ही हमारे पास एक लेयर डंप हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, बुलडोज़र से हम उसको कम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। कम्पैक्ट करके उसके बाद दोबारा उसके बाद नेक्स्ट लेयर आएगी, और इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा, ठीक है। तो जो मिनिमम क्लियरेस्ट डिस्टेंस सराउंडिंग एरिया से कितना होना चाहिए, 6 मीटर का होना चाहिए ड्यूरिंग ये फिलिंग के टाइम, ठीक है। उसके बाद
जो हमें कुछ स्प्रेज़ वगैरह डीडीटी स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है ताकि मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग वहाँ पे नहीं हो। उसके बाद क्या करते हैं फाइनली जब हमने फुली डिस्पोज़ कर दिया वो कर दिया फिल कर दिया वहाँ पे डिवेस्ट, उसके बाद फाइनली क्या करते हैं हम 0.6 मीटर की एक अर्थ की लेयर हम उस पे बिछा देते हैं, ठीक है? उसके टॉप पे वो फिल कर देते हैं, ठीक है? ताकि जो भी हमारे पास रोडेंट्स होंगे वो वहाँ पे लैंडफ़िल जो भी हमने फिल किया हुआ मटेरियल उसके अंदर ना घुस पाएँ, ठीक है? उसको प्रॉपर्ली क्लोज़ कर देंगे। तो फाइनली थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि जो भी उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेज़ेंट होंगे, जो इनऑर्गेनिक होंगे वो तो वैसे ही रहेंगे, जो इनऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेज़ेंट होंगे जो उसमें लैंडफ़िल्स के टाइम जो हमने वेस्ट फिल किया हुआ है, वो टाइम के साथ क्या हो जाएँगे डिकम्पोज़ हो जाएँगे और फाइनली जो होगा वो स्टेबल कंडीशंस में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास सैनिटरी लैंडफ़िल मेथड्स आ जाते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसकी सेंट्रीफिल मेथड की क्या एडवांटेजेस हो सकती है। फर्स्टली ये मेथड सिंपल और इकोनॉमिकल है, कोई भी हमें कॉस्टली इसमें इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और सेकंडली हमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को सेपरेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है? तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और लो लाइंग एरियाज़ हैं, ठीक है? जहाँ पे मतलब मान लो कि जहाँ पे वाटर बहुत देर से इकट्ठा हुआ है, ठीक है? जो लैंड हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं इस मेथड से लैंडफिल करके उसके ऊपर दोबारा हम कोई भी प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास सेंट्रीफिल मेथड की? सेंट्रीफिल मेथड में डिसएडवांटेज सबसे पहले आ जाएगी कि जनरली ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो। पर हमने देखा होगा कि हमारे पास जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जनरली वहाँ पे स्पेस इतनी ज़्यादा अवेलेबल रही नहीं है अब। तो उन केसेज़ के लिए वहाँ पे ये अनसूटेबल हो जाता है। सेकंडली जो हम जब डंप करते हैं इसको, ठीक है? उसकी वजह से कंटिन्यूअसली उस एरिया में क्या होगा फॉल गैसेज़ वहाँ पे रिलीज़ होती रहेंगी, ठीक है? और स्पेशली जिस टाइम हम डंप कर रहे हैं उस टाइम भी वहाँ पे फॉल गैसेज़ रिलीज़ होती रहती हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है? वहाँ पे क्या होती हैं फॉल गैसेज़ रिलीज़ होने से क्या होता है वहाँ पे एक्सप्लोसिव गैसेज़ आपने सुना होगा जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये होती हैं एक्सप्लोसिव गैसेज़ तो उसकी वजह से वहाँ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हों लोग, ठीक है? तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आ गए सेंट्रीफ्यूल मेथड्स के। नेक्स्ट मेथड इज़ कंपोजिट मेथड, ओके? सो कंपोजिट मेथड में क्या होता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। सो इसमें क्या करेंगे हम कोई भी हम ट्रेंच वगैरह निकालते हैं, ठीक है? ट्रेंच निकाल के उसमें जो भी हमारे पास वेस्ट होगा जनरली हम वेस्ट वो यूज़ करते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हो, ठीक है? इसमें प्लास्टिक्स, लेदर, रबर वगैरह इंक्लूड नहीं हो, ठीक है? उस टाइप के हम वेस्ट को कंपोजिट मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसको हम जब यूज़ करेंगे तो इसको कुछ टाइम के रखने के बाद ये क्या होगा ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में इसमें एरोबिक बैक्टीरियाज़ जनरेट होंगे और वो डिकम्पोज़ करना शुरू कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है? तो टाइम के साथ विदिन कुछ टाइम के बाद हमें इसको प्रॉपर्ली वो करेंगे अगर इसको स्टोर करके रखेंगे तो फाइनली जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कंपोस्ट और ह्यूमस और जिसको हम आगे फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं एज ए मैन्योर, ठीक है? तो इसके बाद कंपोजिटिंग में हमारे पास ये आप पिक्चर देख रहे होंगे इस टाइप की कंपोजिट होती हैं तो कंपोजिट में हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं एक हमारे पास इंडोर मेथड मेथड होता है एक होता है हमारे पास बेंगलोर मेथड। तो एक एक करके दोनों को देख लेते हैं व्हाट इज़ इंडोर मेथड। तो ये हमारे पास होता है इंडोर कंपोजिट मेथड। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम पाइल करके रख देते हैं जैसे-जैसे हमारे पास आता है तो उनको पाइल अप करते जाते हैं और पाइल अप करने के क्या होगा ये ओपन में रखेंगे कोई इसमें ट्रेंच-ट्रुंच नहीं निकालते हैं, ठीक है? ट्रेंच समझ रहे हो ना? ट्रेंच मतलब खड्डा नहीं निकालते हैं इसमें ओपन में रखते हैं। तो जैसे-जैसे हम हमारे पास वेस्ट आता जाता है हम उसको पाइल अप करते जाते हैं और फिर क्या करते हैं सॉरी इसमें हम ट्रेंच यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ट्रेंच कितना 1.5 मीटर का ट्रेंच हम यूज़ करते हैं इसमें क्योंकि कंपोज़िट तो ट्रेंच निकाल के ही होगी। तो 1.5 मीटर ट्रेंच निकालेंगे डेप्थ का जिसकी 1.5 मीटर होगी ट्रेंच निकालेंगे उसके बाद इसमें फिल करना शुरू कर देंगे मतलब पाइल अप करना शुरू कर देंगे और रेगुलर इंटरवल्स पे क्या करेंगे उसको टर्न करते रहेंगे ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे उसमें जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहे, ठीक है? तो इसमें जो हमारे पास मिक्सचर बन रहा है इसको कंटिन्यूअसली हम 2-3 मंथ के लिए हम कंटिन्यूअसली टर्निंग करते रहते हैं इसकी मतलब हिलाते रहते हैं इसको ऊपर वाला मटेरियल नीचे, नीचे वाला मटेरियल ऐसे ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो सके और साथ में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कंटिन्यूअस बने रहे जिसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकें वहाँ पे, ठीक है? 2-3 महीने के लिए करेंगे उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद हम 1 या डेढ़ महीने के लिए उसको वैसे ही रहने देते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस उसको छोड़ देते हैं और हम देखेंगे कि 4 महीने बाद
ठीक है। इस एंटायर प्रोसेस को लगभग 4 महीने लगते हैं। फर्स्ट 2-3 मंथ्स हो गए मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। मिक्सिंग मतलब कि टर्निंग करते रहते हैं, और 1.5 मंथ हो गया हमारे पास उसको बिल्कुल विदाउट डिस्टर्ब किए हुए वहाँ रख देना है। तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कंपोस्ट मिलेगी, ठीक है, मैन्योर की तरह। और इस प्रोसेस को लगभग 4 मंथ लगते हैं हमें कंप्लीट करने में, ठीक है। 4 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाता है। तो जनरली ये किस में होता है, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस टर्निंग की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा रहती है इसमें, तो ये जनरली एरोबिक नेचर में होता है, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंडोर मेथड। सेकंड हमारे पास आता है बेंगलोर मेथड। तो बेंगलोर मेथड में क्या करेंगे हम, क्या 10 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ओके। इस डायमेंशन का हम एक ट्रेंच निकालेंगे। ट्रेंच निकालने के बाद ये हमारे पास बेंगलोर मेथड है। ट्रेंच निकालने के बाद क्या करेंगे, ट्रेंच निकाला, ट्रेंच निकालने के बाद उसमें वेस्ट मटेरियल जो होगा हमारे पास उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फाइनली क्या करेंगे, हमने इंडोर मेथड में क्या किया था, उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं दी थी, ओपन रखा था, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, हम जो हमने वेस्ट फिल किया हुआ है उसके ऊपर हम एक अर्थ की लेयर डाल देंगे, ठीक है, जिसकी डेप्थ ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर डेप्थ हो, वो उसके ऊपर डाल देंगे, मतलब मिट्टी डाल देंगे उसके ऊपर। फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 दिन के बाद उसके अंदर क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर राइज़ होता है। टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे ब्रीडिंग और मॉस्किटोज़ वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। क्योंकि हमने कवर कर दिया उसको अर्थ से, तो वो क्या है, अंडरग्राउंड है, और उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ होता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि उस इंडोर मेथड में हम टर्निंग मतलब कंटिन्यूस उसको हिलाते रहते थे, पर इस केस में उसको हिलाएँगे नहीं, ठीक है। इस उसमें इसको स्टेबल रखेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से 4 से 5 महीने के बाद जो होगा, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पे फुली स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसको फुली स्टेबल हो जाएगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा वो, ठीक है, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और फिर उसी को हम बाज़ार में जाके बेच सकते हैं, ठीक है, और एज़ ए मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली जब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो ह्यूमस हमारे पास यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसको कलेक्ट करेंगे, उसको 12.5 की सीप से पास करेंगे, ताकि जो भी इसमें स्टोन्स वगैरह या कोई भी ब्रोकन ग्लास या कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है छोटा छोटा, तो वो 12.5 की सीप से जब उसको पास करेंगे तो उसको रिमूव कर देंगे। और ये मेथड जो है होता है, जनरली म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटीज जनरली थ्रू आउट द कंट्री यही मेथड अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारे पास कंपोजिटिंग का। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आ जाता है पल्वराइजेशन। तो पल्वराइजेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैकेनिकल ग्राइंडिंग मशीन्स का हम यूज़ करके उसको इतनी छोटी-छोटी उसकी वॉल्यूम इतनी रिड्यूस कर देते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकली जो होता है बहुत स्मॉल साइज़ का हो जाए, ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन्स यूज़ करते हैं, और यू कैन से मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसका साइज़ काफ़ी छोटा कर देते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो भी मटेरियल होता है वो प्रैक्टिकली उसमें जो जो भी स्मेल या फॉल गैसेज़ होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती, और जो इंसेक्ट्स जो वहाँ पे जिन फॉल गैसें की वजह से जो अट्रैक्ट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न, इसका ये होता है कि जो भी हमारे पास पल्वराइजिंग करके जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे पोटाश, फास्फोरस मटेरियल, ठीक है, नाइट्रोजस मटेरियल मिलते हैं, ये हम इनको एज ए मैन्योर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वे अनसुटेबल होते हैं थोड़े, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइनली इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम फाइनली श्रेड करेंगे इसको पल्वराइज करके, जो भी हमें मटेरियल मिलेगा, वेस्ट मिलेगा, उसको हम डिकम्पोज कर देंगे फर्दर। कैसे, दोबारा उसको ट्रेंचेस में फिल कर देंगे, ठीक है, या फिर उसको इंसिनरेटर्स में डाल देंगे। तो इंसिनरेटर्स भी देखेंगे आगे क्या होता है। तो ये आ गया हमारे पास पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन मीन्स उसको बिल्कुल उसकी वॉल्यूम रिड्यूस कर देना, बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ में उसको कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है? इंसिनरेशन में आप नाम से ही पता लग रहा है, इंसिनरेशन होता है बर्न कर देना किसी भी मटेरियल को, जो हमारे पास वेस्ट आ रहा है उसको बर्न बर्न कर देना। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ सॉलिड वेस्ट बाय बर्निंग इट इन वेल डिजाइन्ड फर्नेस। ओके। तो जनरली हम मेथड कब यूज़ करते हैं ये, जब जब हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी कम हो, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में पॉलिटिकल मेजर सिटीज़ हैं जो हमारी वहाँ पे, ठीक है, और जो हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इंसिनरेशन मेथड। ओके। तो जनरली जो यूएसए में हम ये इंसिनरेशन मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू जो रिफ्यूज़ की होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उस केस में बर्निंग उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। और
पर इसमें इंसिनरेशन में एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें जो एयर पॉल्यूशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे जब, ठीक है, ऑल्दो इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल्दो इंसिनरेशन में क्या करते हैं हम, एक फर्नेस में बर्न करते हैं, ठीक है, वेल डिज़ाइन फर्नेस में, पर फिर भी जो लॉट ऑफ पोल्यूशन प्रोड्यूस होगा इसके ऊपर से, क्योंकि जब भी हम जो उसमें वेस्ट में प्लास्टिक्स वगैरह पड़े होंगे, ठीक है, कोई भी रबर वगैरह, उसके जो बर्न होने से जो भी गैस इमिट होगी वो सारी इन्वायरमेंट में ही जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस केस में पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। लास्ट आ गया हमारे पास पायरोलिसिस। पायरोलिसिस में क्या करते हैं, इट इज़ सिमिलर टू इंसिनरेशन बट द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई इन दिस केस, मतलब हम इसमें वेस्ट को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, इतने हाई टेम्परेचर पे कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ठीक है, वो होती नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई में करते हैं हम उसको, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर होता है अब 430 डिग्री टेम्परेचर, ओके। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस और ल्यूकड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इतने हाई टेम्परेचर पे गैसेज और ल्यूकड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्पोजल के मेथड को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स थे हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास हमने ओपन डंपिंग पढ़ा, कंपोजिटिंग पढ़ा, सेंट्री लैंड फिलिंग, पल्वराइजेशन, इंसिनरेशन और पायरोलिसिस, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, थैंक यू।